हेलो एवरीवन। तैयारी के सफर में आज का एक और कदम नए विषयों के साथ, नए नजरिए के साथ। इस देश की प्रगति के लिए जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं वही आपको एक विजनरी ऑफिसर बनाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं आज के दिन के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, जहां सिर्फ हेडलाइंस नहीं, हर इशू का जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और यूपीएससी रेलेवेंस को हम समझेंगे। Welcome back, dear aspirants. Let's start with today's session that brings you the most important developments shaping India's defense, diplomacy, internal reforms, and climate discussions. What we have today are five most important headlines that make space in the newspapers. From Indian Air Force push for indigenous fighter jets to India's diplomatic maneuvers against Pakistan at FATF, and from the strategic importance of the Northeast trade to the creation of integrated theaters commands. And yes, even the hidden pollution challenges of electric vehicles. So every topic today is connected to multiple UPSC themes, be it GS paper 2's international relation or paper 3 environment and international relations, or the science tech angle in prelims. So make sure you take notes. और हाँ, आज भी हमारे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में आपको मिलेंगे सारे डिटेल्ड नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस for today's lectures, so that you please check. So let's begin. With India's strategic move towards the self-reliance in air defense. Since independence, India has relied on imported fighter jets, be it MiGs from Russia, Jaguars from UK, Mirages from France, and Sukhois again from Russia. But the need for indigenous strength in air power has always been pressing. India's first attempt was the HAL HF-24 Marut in 1960s and 80s. Though a pioneering effort, it lacked technologically सस्टेनेबिलिटी। आप देखोगे कारगिल वॉर जो है एंड 1998 जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट that exposed our vulnerabilities and pushed policymakers to develop autonomous air defense capabilities. From 2001 onwards, with private sector's entry into defense or manufacturing, mein, India accelerated efforts leading to critical projects like LCA Tejas, Kaveri engine, DRDO's AESA radar, and now the recent statement by Air Chief Marshal AP Singh at the 47th Flight Test Course highlights this commitment with full focus on the next gen. For example, AMCA Advanced Medium Combat Aircraft or LCA Tejas Mk2. These projects aim to reduce import dependency and enhance India's strategic autonomy in airspace. अगर आप देखोगे, आप इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखोगे, ये आर्टिकल में बताया गया है कि भारत ने अपनी रक्षा में कई दशकों का और विदेशी लड़ाकू विमानों पर बहुत ही निर्भर रहे हैं, जैसे MiG जैगुआर्स हो गए, सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट को लेकर। लेकिन 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट और कारगिल के बाद हमें ये एहसास हुआ कि जब तक अपने फाइटर एयरक्राफ्ट खुद नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस सिर्फ एक सपना रहेगा। तो 2001 के बाद जो प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लाया गया, तब से LCA तेजस, कावेरी इंजन और DRDO ऐसे रडार जैसे इंडिजिनियस विकास को बूस्ट मिला। अब एयर चीफ मार्शल जो है AP सिंह ने इसको हाईलाइट किया है, वही है हमारी आज के आर्टिकल की इंपॉर्टेंस। जो AMC और LCA तेजस Mk2 ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं है, ये भारत के एरोस्पेस में एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। आप देखोगे indigenization of defense production, it is a frequently asked questions in mains as well. It is not only important in exam point of view, but it becomes important with your understanding of what role India would play if it is not more dependent on foreign imports for their aircrafts. So this article is all about this. Let's understand it further. So now what we try to understand here is why these indigenous fighter projects matter today to us. If you talk about the AMCA and LCA Mk2 are not just aircraft, they represent India's entry into fifth generation fighter technology, equipped with stealth, advanced avionics and superior combat capabilities.
Secondly, the Indian Air Force is preparing to retire outdated fleets like MiG-21s and Jaguars, which have served since the Cold War era. Their replacement within indigenous multi-role jets means less import dependence and more strategic autonomy. And then comes the flight testing capabilities, or जो schools होते हैं, the engine behind operationalizing these aircraft. Before even deployment, every aircraft undergoes rigorous flight evaluation trials, and this school plays a very vital role in ensuring the safety, agility, and the mission readiness. So, indigenous development isn't just about make in India, it's about trust in India's capabilities. आज के समय में इंडिजीनियस फाइटर जेट्स का विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो है एएमसी और तेजस के जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो सिर्फ फाइटर जेट्स से भी कहीं बढ़कर भारत का जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है। ये बताता है कि भारत सिर्फ खरीदने वाला देश नहीं, बनाने वाला देश बन चुका है। दूसरा जो है जो हम देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने फाइटर जेट को रिप्लेस कर रहा है जो पुराने हो गए हैं। अब इनकी जगह लेने वाले जो है वो रहेंगे होम ग्रोन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जिनका डिजाइन भी देसी है और मैन्युफैक्चरिंग भी। तो और ये जो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जो फ्लाइट टेस्टिंग स्कूल होते हैं उनको जो एयरक्राफ्ट्स को सर्टिफाई करता है, ये एक मिशन रेडी है या नहीं ऐसे सर्टिफिकेट्स देता है। इससे हम पीछे नहीं रहेंगे, इसको डेवलप करेंगे एंड वी विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट बाय दिस. So let's now look ahead. What will be the long-term impact of building our own fighter jets? आप अगर देखोगे strategic autonomy in a world where geopolitics is becoming unpredictable, self-made defense systems allow India to operate independently in high-tension conflict zones, whether it's the Indo-Pacific or along the LAC. If we talk about the export potential of what we will be doing, projects like AMCA and LCA MK2 under Make in India Defense have opened global doors. Countries in Asia, Africa, and Latin America could be potential buyers. So this boosts India's defense export as well. If we talk about economic benefits, what we will be achieving through such kind of initiatives, India spends billions on aircraft imports. With domestic production, we can cut import bills, save foreign exchange, and create local job across the supply chain. It becomes a full-fledged mission to address many challenges that we face now. If we talk about the technological advancement, by entering the elite club of nation with 5th generation stealth aircraft, India not only strengthens national security but also sends a clear message: we are here to lead in airspace innovation. आइए अब समझते हैं कि इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट का फ्यूचर जो है हम पे क्या बनेगा। लाइक जस्ट आई एक्सप्लेन, जो हमने अपने एयरक्राफ्ट बनाना आ जाएगा तो हम किसी भी समय किसी भी सेक्टर में बिना किसी कंट्री पर डिपेंडेंट हुए अपना एयर पावर यूज कर सकते हैं। एएमसीए जैसे और तेजस MK2 जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे लिए नहीं बल्कि उन डेवलपिंग देशों के लिए भी अट्रैक्ट करेंगे जो क्वालिटी और अफोर्डेबल डिफेंस चाहते हैं, जैसे कंट्रीज लाइक अफ्रीका या कोई एशियन कंट्रीज हो गए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज आई एक्सप्लेन टू यू, उसमें क्या होता है कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है बचेगी, जैसे हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम साथ साथ में कर सकते हैं। तो राइट आई एक्सप्लेन कि जैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखोगे तो यहाँ पे यूपीएससी के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे इंडिजिनाइजेशन इन नेशनल सिक्योरिटी का क्या रोल है, या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एएमसीए का क्या क्या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज की है, कौन से डिफेंस के नए इनिशिएटिव्स है, मेक इन इंडिया का क्या रोल है, एक्सेट्रा. I have given you the practice question of each and every article that is present here, so you can go through that once you understand it better. Any doubt, please comment down. We can try to resolve it. So now let's simplify and understand the basic features of India's two most promising indigenous fighter jets and a key support institution for defense. If we talk about LCA Tejas MK2, this is an upgraded 4.5th generation multi-role fighter compared to MK1
It has higher payload capacity. It has larger fuel storage for longer range. It is enhanced avionics for modern combat makes it very unique. It bridges the gap between light and medium weight fighter roles, and it is 100% indigenous, Indian made. If we talk about Advanced Medium Combat Aircraft, that is AMCA, this is India's answer to the fifth generation stealth fighter club. Developed jointly by DRDO and HAL, it has a very stealth features, that is, it contains internal weapon bay, it has advanced sensors, and its super cruise capabilities makes the flying faster than sound without afterburners. The points like the establishments like ASTE, Aircraft and System Testing. This is again a joint initiative by DRDO and IEF. It is a testing school. It trains test pilots and engineers to evaluate aircrafts like Tejas and AMCA before operational deployment, playing a very critical behind the scene role in defense aviation. जो आप ये अभी हमने ये जो देसी एयरक्राफ्ट्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं, इनके बेसिक्स को अभी अभी जाना। आप सोचिए कि कितने हम कहाँ से एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके कितने अच्छे से मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, टेस्टिंग स्कूल्स बना पा रहे हैं खुद के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव है डेफिनेटली हमें एक बहुत ही पावर और कॉन्फिडेंट प्रोवाइड करेगा डिफेंस के लिए, and we should look forward for these kind of initiatives. So coming to the next point, let's now turn our attention to India's strategic northeast, which is gradually transforming into a corridor of commerce and diplomacy. आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट का जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, at a recent summit, the Prime Minister reiterated the importance of direct connectivity between Northeast India and South Asian nations like Myanmar, Thailand, Laos, and Vietnam. This aligns with India's Act East policy as well, that aims to position the Northeast as a gateway to Indo-Pacific region. If we talk about the infrastructure push here, the PM highlighted that over 700 ministerial visits to the Northeast have taken place in the past decade. A sign of a sustained policy attention is seen. Massive infrastructure is being developed, जैसे कि highways, border trade zones या rail या air connectivity हो गई. All this would boost the regional trade and integration. अगर आप बात करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, तो with growing geopolitical focus on the Indo-Pacific, Northeast is becoming essential to India's strategy. Economic integration with Asia and through this region will definitely reduce regional isolation and will definitely strengthen India's look east to act east transition. आप बात करते हैं जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जो सिर्फ एक भौगोलिक रीजन नहीं है बल्कि भारत के लिए एक ट्रेड और डिप्लोमेसी का एक दरवाजा बन सकता है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाता है दूसरे देशों से, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। ये सारा कनेक्टिविटी या जो ट्रेड बूस्ट की बात हो रही है वो इसीलिए है क्योंकि इसका मकसद है हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इससे हमें पता चलता है कि पॉलिसी लेवल पे इस रीजन को लेकर बहुत ही फोकस बना हुआ है। जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में हम देखोगे हाईवेज, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुई है, उससे जो है हमारे ट्रेड और कॉमर्स को एक बहुत ही अच्छा पुश मिलेगा। जब हम इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स को जिक्र करते हैं तो उसका सेंटर नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। वो जो एक इंटीग्रेशन होगा साउथ ईस्ट एशिया का नॉर्थ ईस्ट से, हमारे लिए, इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक नैरेटिव का बहुत ही की पार्ट बनेगा। if I'm telling you the article is very important for GS2, जहां पे हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी या कोई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में भी आप देखोगे जो टाउन्स होते हैं जैसे मोरे है या कनेक्टिंग कॉरिडोर्स होते हैं, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ टू अंडरस्टैंड द नॉर्थ ईस्ट एज उनका और इमर्जिंग रोल जो है,
as a trade corridor, we need to understand and revisit the policy evolution that has happened there. In 1990s जो है लुक ईस्ट पॉलिसी पे हमने काम किया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिसी को लॉन्च किया by aiming to improve India's ties with Southeast Asia, especially after economic liberalization. But in 1990s, it was more about the diplomatic outreach than the ground level execution. In 2014 came the Act East पॉलिसी, जहां पे नए गवर्नमेंट ने उसको रीब्रांड किया बोल एक्ट ईस्ट बोल के, जहां पे वो बहुत एक क्लियर शिफ्ट था फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेसी टू प्रोएक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग. Here the Northeast became the central player, not just a remote corner. अगर प्रेजेंट की बात करें तो टुडे नॉर्थ ईस्ट इज बीइंग पोजिशन्ड एज अ जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक लिंचपिन, नो लॉन्गर सीन एज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, बट इट इज acting or proving to be a gateway to ASEAN and the Indo-Pacific vision. हम जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वो हमें एक टेंशन का जोन से ज्यादा एक ट्रेड कॉरिडोर के रूप में उभर के आ रहा है. 1990s में जो एक पॉलिसी देखने को मिली थी जो लॉन्च हुआ था, उससे लेके 2014 में जो हमने एक ट्रांजिशन देखा और जो रीफ्रेजिंग की गई थी उसकी अकॉर्डिंगली जो लुक से ज्यादा एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान दिया, जहां पे एक बहुत ही प्रोएक्टिव फोकस देखने को मिला हमें. अभी भी प्रेजेंट में आप देखोगे जो ये सारे मिनिस्ट्रियल विजिट हो रहे हैं कुछ पिछले सालों से, इट इज मेकिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन अ वेरी डेवलप्ड रीजन, मेकिंग इट अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड अदर रीजन इन ईस्ट. So this becomes a very important topic where we can relate एक बहुत ही अच्छे से कि हाउ अ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कोई एक प्रायोरिटी बेस्ड फोकस कोई रीजन में दैट वुड हेल्प अस बिकम अ लीडर, और एक हमारे जो जियोपॉलिटिकल रिलेशंस रहेंगे बाकी नेशंस के साथ जो ईस्ट में है उनको हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एशियान जैसे समिट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो प्लीज बी थोरो विद द मैपिंग एज वेल. So now let's decode the three major connectivity projects that are shaping the Northeast as India's bridge to Southeast Asia. अगर हम बात करेंगे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे की, तो ये जो है दिस इज एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट्स इंडियाज नॉर्थ ईस्ट टू थाईलैंड वाया म्यांमार. Once completed, it will enable seamless movement of goods and people. ये क्या करेगा जो बहुत ही अच्छे से एनहांस करेगा रीजनल कोऑपरेशन अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. It will strengthen India's presence in the Indo-Pacific highway networks. If we talk about the second project here, जो है कालादान multimodal transport project. The strategic multimodal corridor, this project connects Kolkata port, Sittwe port in Myanmar by sea. Then जो ये सिटवे पोर्ट रहेगा वो मिजोरम को कनेक्ट करेगा वाया इनलैंड वाटरवेज एंड रोड. तो ये जो प्रोजेक्ट है it will provide alternate access to the northeast bypassing the narrow Siliguri corridor जो chicken neck के नाम से भी जानते हैं हम लोग. If we talk about the third one, that is the Beamsteak corridor that is always in news, this corridor promotes sub-regional connectivity by linking northeast with Bay of Bengal countries जैसे Bhutan, Nepal, Myanmar, Bangladesh, Thailand and Sri Lanka. It will definitely support energy exchange, trade integration, डिजास्टर रिस्पांस कोऑर्डिनेशन जैसे चीजों को लेकर. हमने अभी देखा कि ये जो तीन बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत के एक एक्ट ईस्ट विजन के साथ जोड़ रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है. हमने देखा कि कैसे ये एक हाईवे जो ट्राइलैटरल है उससे हमें एक्सेस मिलेगा ये सारे कंट्रीज के लिए और बहुत ही एक ट्रेड के लिए या लोगों का कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा. तो अगर हम बात करेंगे जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस रहेंगे उसके बारे में, तो it with improved connectivity, investment zones and better logistic, regional trade जो है within Northeast and with Southeast Asia will see a major jump.
It helps integrate India's frontier states with global markets. If we see the Asian influence, Northeast connectivity gives India a stronger soft power presence in Asia, expanding our cultural, educational, and diplomatic footprints in Southeast Asia. आप देखोगे अगर हम चाहते हैं चाइना को काउंटर बैलेंस करना तो दिस स्ट्रेटेजी इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू चाइनाज वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव. By developing our own corridors, India ensures it doesn't get isolated in the regional trade architecture. अगर हम बात करेंगे लोकल डेवलपमेंट की, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रहेगा वो रहेगा बेटर जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सोशल कोहेशन देखने को मिलेगा इन नॉर्थ ईस्ट. तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है. अगर हम इनिशिएटिव डेवलप करते हैं तो ना ही हम बल्कि हम लोग एक ट्रेड भी डेवलप कर रहे हैं और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक और डेवलपमेंट की तरफ पुश कर रहे हैं. जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है आसियान के साथ ट्रेड का नेचुरल गेटवे बन जाएगा. एक्सपोर्ट इंपोर्ट जोन जो है भारत के जो स्टेट्स रहेंगे उनको एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बना देंगे. तो आप सोचिए जब भारत के लोग प्रोडक्ट्स और कल्चर को हमारे एशिया तक डायरेक्ट पहुंचाएंगे तो सॉफ्ट पावर जो है ऑटोमेटिकली हमारा बढ़ जाएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में. चाइना की जो बहने अभी बोला कि आपको उनका जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हमारे इंडिया को भी एक सस्टेनेबल और डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा ऐसे डेवलपमेंट के साथ. सो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन का मॉडल है और जिसपे हम अपना एफर्ट्स डालेंगे उतना हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा पुश मिल सकता है. We can definitely link this topic to various themes, but prelims point of view से जो factual questions आते हैं एशियान पे या बिम्स्टेक पे या कोई रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पे, वो उससे आप डेफिनेटली वेल वर्स रहिएगा. बहुत फैक्चुअल डेटा रहता है तो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग दैट ऑलवेज. ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो पीएम नरसिंह राव थे उस टाइम पे, वहां पे उन्होंने लॉन्च किया था, विच वाज अ डिप्लोमेटिक बिगिनिंग फोकस्ड ऑन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज विद एशिया. अगर आप देखोगे वो कॉन्ट्रास्ट था एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो लॉन्च की गई थी पीएम मोदी ने जो इन 2014 में, which is more assertive and it aims to build stronger defense ties, seamless connectivity, economic partnership across the Indo-Pacific area, and most importantly, the Northeast region, which earlier remained isolated, now stands at the heart of the transformation. हमारे ये जो मैं यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, उनके जो टारगेट रहे, उनके जो पर्पस रहे हैं पॉलिसी लॉन्च करने की, ये मेंशन किया गया है. लुक ईस्ट पॉलिसी जो है जो 1990s की थी, उन्होंने तब भी वो कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज में उन्होंने बहुत फोकस किया था, जिसे एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी मॉडल भी हम लोग कह सकते हैं. लेकिन जो 2014 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिसमें स्ट्रेटेजिक आउटरीच, डिफेंस कोऑपरेशन और फिजिकल जो कनेक्टिविटी है उस पे ज्यादा जोर दिया गया. सबसे बड़ा बदलाव ये था कि नॉर्थ ईस्ट जो पहले एक बहुत ही पैसिव एरिया था, अब पॉलिसी का बहुत ही कोर स्ट्रेटेजिक जोन बन गया. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईयर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं और जो उनके क्या की फोकस एरिया होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको हेल्प करेगा उसके लिए. So let's now focus on a very key development in India's diplomatic strategy against cross-border terrorism. India plans to submit a India ने प्लान किया है to submit a dossier to the Financial Action Task Force FATF urging Pakistan's re-inclusion in the grey list during the June plenary session. ये क्यों है? Because Pakistan allegedly continues to violate anti-terror financing commitments despite earlier promises. इंडिया जो है हाईलाइट कर रहा है failure to implement strong anti-terror laws और continued support to terror groups operating across borders. This moves aligned with India's broader global pressure strategy via forums like UNSC, FATF and World Bank. ये जो इंडिया यूज कर रहा है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को to isolate Pakistan diplomatically.
अगर आप इसका क्विक बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो FATF जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में बाय G7 टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. Pakistan was grey listed from 2018 to 2022 but was removed after many cases were heard and everything. जो रिफॉर्म उन्होंने प्लेज किए थे they got them back. Now India claims that those promises remain unfulfilled. तो ये जो भारत की जो ये स्ट्रेटेजी है जिसका फोकस है पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में वापस भेजने का, ये जो भारत ने दोसियर तैयार किया है ना, इसके जिसमें उन्होंने दिखाया गया है कि पाकिस्तान एक एंटी टेरर फाइनेंसिंग पर किए गए प्रॉमिसेस को पूरा नहीं किया कर पाया है, खरा नहीं उतरा है. तो पाकिस्तान पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए इंडिया ने और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम लोग उनको पाकिस्तान जैसे कंट्री को आइसोलेट कर पाए. This is the basic of this article. So let's break down ये जो FATF के लिस्ट होती है and understand their global and Indian implications. अब देखोगे ग्रे लिस्ट जो है these are countries under enhanced monitoring not complying fully with anti money laundering and anti terror finance norms. तो आप देखोगे जो एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में म्यांमार, टर्की जैसे नेशंस हैं. These nations faced increased scrutiny but no hard sanctions were placed on them. It serves as a warning and pushes them to reform their financial system. अब ब्लैक लिस्ट की बात करेंगे तो ब्लैक लिस्ट जो है बहुत ही हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है विद सीरियस स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज. एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें नॉर्थ कोरिया, Iran. They face strict restrictions on financial transaction. FATF जो है recommends बहुत ही strong countermeasures जो है making their economy isolated globally. अगर हम बात करें FATF और इंडिया की उसके रोल की तो इंडिया is member of FATF via the Asia Pacific Group APJ के द्वारा. FATF compliance is very crucial for foreign investor confidence, especially in FDI heavy sectors. For India, FATF acts as a powerful tool in its counter-terror diplomacy, pressuring countries like Pakistan to act against terror funding networks. तो चलिए समझते हैं कि FATF के ये जो दो लिस्ट है और उनका जो ये भारत पे इम्पैक्ट है उसको एक ये जो हम लोग स्ट्रेटेजी बना के आइसोलेट करने की ट्राई कर रहे हैं नेशन पाकिस्तान के जैसे नेशंस को, उसका क्या असर है. ये जो कंट्रीज हैं जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंस के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है उनको वो ये दोनों लिस्ट में डाल देता है. 22-24 का जो ये म्यांमार का हुआ था लेकिन उनपे कुछ ज्यादा संकट नहीं आए थे, वो बस मॉनिटरिंग के लिस्ट में डाले गए थे. ब्लैक लिस्टेड जो नेशंस होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो एक बहुत ही सीरियस डेफिशिएंसीज लाते हैं नेशन की प्रोग्रेस में. अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया भी ब्लैक लिस्टेड है. FATF एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम लोग कॉम्प्लाई करते हैं. उससे क्या होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं फॉरेन में वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने से नहीं घबराएंगे अगर हम उनके FATF की जो रेटिंग है उनके अच्छे रेटिंग्स में आ गए तो. और भारत जो है ना एवरी नाउ एंड देन हैव यूज्ड द प्लेटफॉर्म टू यूज टेरर सपोर्टिंग कंट्रीज के ऊपर ग्लोबल प्रेशर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से करता है और स्पेशली इन पाकिस्तान केस. इसके अगर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस ऑफ पाकिस्तान पोटेंशियल रीलिस्टिंग को हम देखना चाहेंगे तो अगर पाकिस्तान फिर से रीलिस्ट होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वोंट जस्ट बी रेपुटेशनल, दे विल डीपली इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल इफेक्ट करेंगे. अगर आप इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखोगे तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB may even withhold the funding, impose more tougher conditionalities and raise cost of borrowing for Pakistan. अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान जो है बहुत पहले से स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिक से को लेकर. अगर ये फिर से हुआ तो इट माइट सफर द कैपिटल फ्लाइट, इट माइट मेक देयर करेंसी डिप्रिशिएट मोर, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है उनके कंट्री में एंड डिफिकल्टी इन इंटरनेशनल बोरोइंग. ये एक बहुत ही बुरा इफेक्ट है इस चीज का. इफ यू टॉक अबाउट द डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, इंडिया कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट itself as a credible and consistent voice on counter-terror diplomacy.
It would leverage global opinion in multilateral forums. If we talk about geopolitical shifts, there is also risk. Pakistan might respond by strengthening ties with China, especially under CPEC and military cooperation. They may further tilt regional power dynamics to with us. तो इससे क्या होगा, ये पाकिस्तान कर सकता है, which will be kind of a threat for us in a regional diplomacy. बट इसके प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे. एक बैलेंस्ड मूव हमारे नेशन ने जो किया है, जो पुश कर रहा है डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए पाकिस्तान को. लेट्स सी आगे उसके रेपरकशंस क्या आते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वो जो कि है क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स. ये बहुत ही अवेटेड रिफॉर्म रहा है इंडिया के लिए, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने का. इन द रीसेंट बुक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान highlighted the ITC as a revolutionary transformation for India's armed forces. So what does it mean? Currently, India का जो आर्मी है, नेवी है एंड एयरफोर्स है, वो सेपरेटली ऑपरेट करता है with their own commands and resources. अगर theater commands aim to unify these under a single joint command based on geographical sectors like north, west, maritime commands जैसे. ये क्या अलाउ करेगा, जो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन होता है वॉर के टाइम में, इट विल एनहांस, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर पाएंगे हम लोग, faster decision making होगा during conflicts. And yes, this marks India's first real step towards modern joint warfare systems like those seen in US and China. जो भारत के डिफेंस का रिफॉर्म्स है, ये सबसे बड़ा कदम माना जाएगा जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स. तो इस अब तक के जो हमने देखा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है अपना अलग अलग कमांड यूज करते थे, स्ट्रक्चर यूज करते थे, लेकिन एक कंबाइंड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है. यहाँ पे आप देखोगे जहां एक जॉइंट फोर्स कमांडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कोऑर्डिनेट करेगा. इससे ये होगा कि जो हम रिस्पॉन्सेज है वो ज्यादा फास्टली प्रोवाइड कर पाएंगे, रिसोर्स जो है बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, और जो बैटलफील्ड में रियल टाइम डिसीजन मेकिंग का इंपॉर्टेंस होता है उसको भी हम अचीव करेंगे. सो ये सारा जिक्र जो उन्होंने अपने बुक में किया था, ये एक नए भारत की मिलिट्री थिंकिंग का प्रारंभ है. आप देखोगे ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ना, इसका फ्रेमवर्क जो है ये नया आइडिया नहीं है. इट हैज बीन इन पाइपलाइन फॉर ओवर 2 decades. लेट्स स्ट्रेस इट्स इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप. 1999 के जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी, उन्होंने वॉर के बाद रियलाइज किया कि इंडियाज आर्म फोर्सेस नीडेड बेटर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन. Each services operating in isolation that had led to coordination failures at times. 2001 में हम देखोगे नरेश चंद्र टास्क फोर्स जो हुआ था, it officially recommended a creation of permanent chief of defense staff, someone who could coordinate across army, navy and air force. 2019 में जो है ये CDS पोस्ट क्रिएट करी गई थी. फाइनली CDS पोस्ट इस्टेब्लिश हुआ. जनरल बिपिन रावत बिकेम इंडियाज फर्स्ट CDS. या क्या मैंडेट था उनका? इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो रिफॉर्म करेगा मिलिट्री स्ट्रक्चर को. प्रेजेंट डे की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबली USA, चाइना, रशिया ऑलरेडी ऑपरेट अंडर theater based command systems. India is now moving towards a similar structure for faster, coordinated and modern military responses. जब हम ऐसे कुछ इनिशिएटिव की बात करते हैं तो एक बहुत ही हिस्टोरिक एक कदम रहेगा हमारे सिस्टम के लिए. ये जो वॉर के टाइम पे हम लोगों ने अभी जो चैलेंजेस फेस किए, तो उसको ओवरकम करने के ये कुछ स्टेप है जो ये आर्टिकल हमें बता रहा है. इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को ना इस्टेब्लिश करना बहुत पहले से ही सोच रहे थे, जिसके लिए हम धीरे धीरे CDS पोस्ट क्रिएट करना, उसको इस्टेब्लिश करके फॉलो करना, उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड यही थी कि एक थिएटर कमांड हो इंटीग्रेटेड जो रहेगा. इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो एक मिलिट्री सिस्टम रहेगा वो एक अन्य देशों की तरह, US और अमेरिका की तरह एक बहुत ही सिमिलर इंटीग्रेटेड फॉर्मेट को फॉलो करेगा, और अभी हमारा कंट्री उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.
So now let's try to understand why the ITC is important, is significant, and ये मॉडल हम इस चर्चा इस पे इतनी क्यों हो रही है और आज की इसकी डिमांड क्या है। आप देखोगे इसका जो करंट स्ट्रक्चर है हमारा एट प्रेजेंट आर्मी नेवी और एयरफोर्स जो है ऑपरेट सेपरेट सिलोज जो it each has its own command, own logistic and planning which often leads to duplication and delayed joint responses. ये जो प्रपोज किया गया इंटीग्रेशन है, the idea is to reorganize commands based on geography और functions like northern theater जो चाइना के बॉर्डर की तरफ, वेस्टर्न थिएटर फॉर पाकिस्तान एंड अ मैरीटाइम थिएटर फॉर सी बेस्ड कोऑर्डिनेशन। तो वो बोल रहे हैं कि दिशाओं के लेकर हम लोग थिएटर का मॉडल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दिस अलाउज सीमलेस कोऑर्डिनेशन इन रियल टाइम बैटल सिचुएशंस। बात करें लीडरशिप कमिटमेंट की तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है उन्होंने फिर से रीइटरेट किया कि थिएटर कमांड आर अ टॉप डिफेंस रिफॉर्म प्रायोरिटी एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड स्टेप बाय स्टेप। इनके जो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो रहेंगे, ये जो मेन एम करता है वो इसीलिए करेगा क्योंकि इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी इससे। इट वुड रिड्यूस वेस्टफुल ओवरलैप एंड बूस्ट कॉम्बैट रेडीनेस इन अ फास्ट इवॉल्विंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, स्पेशली गिवन चैलेंजेस फ्रॉम बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज जो दोनों दिशाओं में है, ये मॉडल इम्प्लीमेंट करने पर हमें बहुत ही ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करने की एक हम कर पाएंगे फास्ट रिफॉर्म। ये हमारे जो हमने करंट स्ट्रक्चर देखा इसको अगर हम ओवरकम करेंगे तो वो जो कोऑर्डिनेशन डिले का या रिसोर्सेज को ओवरलैप होने का जो प्रॉब्लम है उसको हम टैकल कर पाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा बनेगा एंड इट वुड डेफिनेटली लीड अस टू अ बेटर एक डिफेंस में हमें बहुत ही एक कॉन्फिडेंट बिल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर हम ट्राई करेंगे इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को समझने की तो once India fully implements the integrated theater command model, क्या कर सकते हैं हम joint planning कर सकते हैं। Having a unified command means better joint planning, training and combat readiness. It would definitely improve synergy during real conflict situation, be it at the border or maritime threat. If we talk about the unified structure of this model, it would definitely reduce inter-service rivalry and ensure everyone, Army, Navy, Air Force, follow a single battle plan under one commander. If we talk about the resource efficiency, वो हालांकि बढ़ जाएगी, बहुत ही डेवलप होगी क्योंकि ये हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ बजट, लॉजिस्टिक्स एंड मैन पावर। कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, इसका मतलब रहेगा बेटर एफिशिएंसी एंड कॉम्बैट वैल्यू। If we talk about implementation challenges, however, reform won't be that easy. There could be resistance from within the services unless जो है cultural mindset and command protocols हम evolve नहीं करते। जो ट्रेनिंग है, ट्रस्ट बिल्डिंग है या पॉलिसी क्लैरिटी है, यहाँ पे एक बहुत ही की रोल प्ले करती है। To understand why India is moving towards theater command, we need to see how leading global militaries are already doing this. कुछ global examples हैं जो हम उनकी मॉडल को समझने का ट्राई करते हैं। जो US military है, it's fully theater based. Each regional command includes assets from Army, Navy, Air Force and Marines, all under one commander. जो की examples रहेंगे वो है CENTCOM for the Middle East, Indo-PACOM that handles Indo-Pacific including China and India. AFRICOM जो है focuses on Africa जैसे countries। तो ये क्या है? These are the strategic combat units able to act swiftly and jointly across theaters. हम Chinese मॉडल को अगर देखना चाहते हैं तो China have reformed its military in 2015. It created 5 theater commands जो है, तो उन्होंने बनाया वेस्टर्न थिएटर कमांड डायरेक्टली दैट फेसेस इंडिया, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, साइबर एंड स्पेस सपोर्ट बनाया उन्होंने बनाया एक एंटायर सिस्टम जो रहेगा रिपोर्ट करेगा टू द जनरल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। सो दिस गिव चाइना मोर अजाइल, मॉडर्न एंड कॉम्बैक्ट सिंक्रोनाइज्ड फोर्स। तो हम देखते हैं कि जो ये ग्लोबल प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने मिलिट्री को या एक अपने डिफेंस को किस तरह से इंटीग्रेटेड रखा है, रीजनली डिवाइड करके रखा है, जहां पे ये सारे मॉडल्स जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करना।
India is definitely taking steps to follow this. Let's hope and let's see what we come up with. So let's now look at a lesser known side effect of the EV revolution. A recent study published in the journal Soft Matter by researchers from TIFR, IIT Bombay, and Columbia University has brought attention to a very unique pollution issue. While electric vehicles reduce tailpipe carbon emission, they may increase tire wear, which releases microplastics and fine particulate matter into the air. Why? Because EVs are heavier than the traditional cars due to their battery packs. This causes more friction, especially from tires, that will lead to higher non-exhaust emission. ये आर्टिकल ये एक इंसाइट देता है और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो एक इंसाइट बताएगा आपको कि कार्बन एमिशंस ईवी में लोअर है, बट अगर आप देखोगे जो ये टायर पार्टिकल्स जो है एमिट करता है आर एक्चुअली हायर इन ईवीज. Though this adds a new dimension to the India's EV policy, we must now factor in tire and brake emission in emission calculation. इलेक्ट्रिक्स व्हीकल जो है उनके बारे में हम अक्सर सिर्फ उनके लो कार्बन फुटप्रिंट्स की बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन एक जो छुपा हुआ पोल्यूशन प्रॉब्लम है इसको हाईलाइट करता है ये आर्टिकल. आईआईटी बॉम्बे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक जो है जो टेल पाइप इमिशन जो है ना वो ज्यादा है. वो भले ही कम करता हो ईवी व्हीकल, लेकिन उसमें जो है फ्रिक्शन ज्यादा पाया गया है जिससे वो माइक्रोप्लास्टिक और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इमिट करता है ज्यादा. देखा कि वो जो वेट की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, इससे जो है टायर पार्टिकल रहते हैं उनका एमिशंस थोड़ा कन्वेंशनल व्हीकल से ज्यादा हो सकता है. So let's now look at the scientific mechanics behind how EVs, despite being greener, can still contribute to the airborne pollutions. अगर हम बात करेंगे टायर डिग्रेडेशन प्रोसेस की, तो टायर्स जो है डिग्रेड होते हैं ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन एंड रोड कांटेक्ट की वजह से. सो दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. वो होता है 100 माइक्रोमीटर से भी कम जो सेटल होता है ग्राउंड पे, और जो उससे ज्यादा होता है वो रिमेन एयरबोर्न एंड कॉजेस पीएम पोल्यूशन. These microplastics can stay in the air and enter human lungs and ecosystem. If we talk about the EV weight factor, EVs weigh 300 to 900 kg more than conventional cars due to lithium-ion battery packs. इसके चलते क्या होता है, more pressure is seen on the road, put on the road. उससे क्या होता है, टायर ज्यादा जल्दी खराब होगा, more friction, heat and fragmentation of the tire rubber हो सकता है. इसके चलते वो ज्यादा अपना टायर को खराब कर देगा. ये जो एक्सेलरेशन इम्पैक्ट रहेगा वो जो हायर टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है. दिस लीड्स टू ग्रेटर प्राइमरी फ्रैगमेंटेशन एंड हेंस मोर पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द टायर्स. इसका पोटेंशियल सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो we have to include tire particulate regulation भी quality standards में. We have to promote low emission tire designs. We can improve urban road designs to reduce tire stress. या हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं that captures technology near emission zones, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के यहाँ पे कुछ हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके we can track कि कितना emission हो रहा है ये रोड पे एक्सेट्रा. जब हम देखते हैं कि ये जो टायर डिग्रेडेशन की बात करते हैं, जो ज्यादा ब्रेक लगाना या एक्सेलरेट करने की वजह से रोड से कांटेक्ट बढ़ जाता है जिससे वो पार्टिकल्स जो है बड़े जो होते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाएंगे, छोटे वाले हवा में ही पोल्यूशन क्रिएट करने की वजह बच जाते हैं. हायर वेट भी एक ज्यादा रीजन है टायर ब्रेकडाउन का. एक्सेलरेशन तो वो उनका जो हायर टॉर्क होता है ईवीज में उसकी वजह से वो ज्यादा एक्सेलरेशन फास्ट हो जाता है. सोल्यूशन में हमने देखा कि कैसे हम लोग उसके एमिशन को इंक्लूड कर सकते हैं रेगुलेशन में, या लो वेयर टायर्स बनाने को कुछ हम एनकरेज करें टायर कंपनीज को. ये सारे सोल्यूशंस को हम ध्यान में रख सकते हैं. तो हमारे सेशन में हमने आज के देखा कि जो यूपीएससी के लिए फैक्चुअल भी है, एनालिटिकल भी थे, और सबसे जरूरी बात ये सब आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों में एक एज देंगे. चाहे वो आईएएफ का सेल्फ रिलायंस का जो पुश हो गया, या नॉर्थ ईस्ट की जो हमने स्ट्रेटेजिक एक मेक ओवर देखा, या एफएटीएफ के जरिए हम लोग कैसे डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं
या उसके साथ-साथ ही हम अपने रिफॉर्म्स कैसे कर रहे हैं थिएटर कमांड को लॉन्च करने की बात करके। तो ये बताता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एक समय के साथ हमें सोच भी इवैल्यूएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। You always remember it isn't just about the reading news, it's about understanding the why behind the what, and connecting it to India's governance, diplomacy, and development trajectory. I keep telling you, keep revising the basic concepts, keep connecting the dots to the current affairs happening, and most importantly, keep questioning like a policymaker. Don't forget to click the link below this video that has your detailed class notes and that has UPSC relevant practice questions to boost your retention. Thank you so much. This is it for today. I shall meet you tomorrow. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.